Next, we are continuing in case law profits and gains of business and profession. So, section 37, so which covers revenue or allowable expenses. So, number 47 case law is CIT versus Hindustan Zinc Limited 2009. So, in this case, construction of power lines by the assessee for supply of power from electricity board. So it means so company wants a power and it has constructed power lines and but these power lines will remain property of electricity board. It means this is not the property of this company. So whether it is a capital expenditure or revenue, so it is allowed as expense. Like I say, the erection of power lines by the assessee was for facilitating its routine operations and for smooth functioning of its business. Hence, it is a revenue expense. It is allowed. So another one is additional CIT versus Dharmpur Sugar Mill Private Limited 2015. So in this case, it is also similar to this. So company made construction of transmission lines, towers, and ancillaries for power generation, and it is property of a power corporation. So whether it is capital expenditure revenue, so it has been held that the expenditure incurred by the SSC was for aging, efficient, and smooth conduct of its business, and this was not an advantage of a capital nature. Hence, it is a revenue expense. तो इसमें जिस केस में आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी की और ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है या किसी और कॉरपोरेशन के पास देन इट इज अलाउड एज एक्सपेंस। तो दोनों केस लॉ सिमिलर हैं आपके। नेक्स्ट वन इज अवर CIT versus Hindustan Zinc Limited 2010. In this case, a company made expenditure on alteration of a dam to get water supply. तो वाटर के लिए आपको डैम के ऊपर कुछ अल्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर करना पड़ा। Assessee incurred expenditure without having any right or ownership in the dam or water for efficient conduct of his business, which is also revenue expense। उसमें भी जो डैम के ऊपर आप एक्सपेंडिचर करोगे उसकी कोई ओनरशिप नहीं मिलेगी, आपको कोई राइट नहीं है आपका उसके ऊपर, इट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो इट मीन दिस इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंस। कंट्रोल एंड स्विच गियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड वर्सेस DCIT 2014। So in this case, guarantee commission paid to its employee directors who have given guarantee to the bank for enabling credit facility to company। तो कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, उसकी गारंटी दी है डायरेक्टर्स ने, और जो एम्प्लॉइज हैं तो उनको अब कंपनी कमीशन पे कर रही है। तो दिस इज आल्सो बिजनेस पर्पज के लिए है, तो दिस इज डिडक्टिबल है कि बिजनेस एक्सपेंस ऑफ कंपनी। So in this case, it will held that directors are employees of the company, but the act of providing personal guarantee was clearly beyond the scope of their services as employees of the company। तो वैसे उनका ये काम नहीं है कि उन्होंने गारंटी देनी है। Hence, the commission paid is neither dividend nor commission for services। तो ये ना तो सैलरी का पार्ट माना जाएगा, ना ही हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं, बट allowable at general expense of company under section 37 subsection 1। Another case law is Shyam Burlap Company Limited versus CIT 2016। So in this case, company had paid a compensation to tenants for vacating the premises in order to earn higher rent by re-letting out the same। मीन्स पुराने tenants से उनको compensation देके हमने vacate करवा लिया है and so that we can let out at a higher rent। तो अभी जो compensation दे रहे हैं whether it is allowed as revenue expenditure if the main objective of company is to earn income by way of sale, lease, letting out of properties। So in this case, it is held that the commission, the compensation paid to existing tenants who have their portions vacated, who have new tenants to earn higher rental income is business activity, hence it is allowed as revenue expense। तो इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। Another case law is so FJ Forgings Limited versus ACIT 2010। तो इसमें कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है ऑन हायर स्टडीज अब्रोड ऑफ डायरेक्टरसन एंड अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया था हमने एज ए ट्रेनिंग इन कंपनी, बट वेयर देयर वाज नो प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए स्कीम। तो पर ऐसी कोई स्कीम नहीं है कंपनी की, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 37 में। तो इट इज हेल्ड दैट देयर वाज नो नेक्सस बिटवीन द एजुकेशन एक्सपेंडिचर incurred abroad for the directorson
एंड द बिजनेस होगा असेसी कंपनी, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हेंस द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर सनवाग नॉट डिडक्टिबल, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिसे नॉट अलाउड। Another case law CIT versus GCM Limited 2010. So this is payment of re-arrangement compensation and interest on money borrowed for payment of re-arrangement compensation on closure of one of the textile manufacturing units of the assessing company. तो वो कंपनी की एक टेक्सटाइल यूनिट जो है वो बंद हो रही है, तो उसके कुछ वर्कर्स को आपने रिक्रैंच कर दिया है, उनको हम कंपनसेशन दे रहे हैं और उसको पे करने के लिए हमने मनी भी बोरो किया, उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है? द क्लोजर, इसमें डिसीजन है क्लोजर ऑफ वन टेक्सटाइल यूनिट वो नॉट अमाउंट टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। जब आप सिर्फ एक ही फैक्ट्री बंद कर रहे हैं ना, वो बिजनेस का क्लोजर नहीं माना जाएगा। तो दिस इज ओनली पार्ट ऑफ बिजनेस, हैंस पेमेंट ऑफ रीट्रांसफर कंपनसेशन एंड इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड इज अलाउड एज एक्सपेंस, तो ये आपका एक्सपेंस माना जाएगा। हाउएवर इसमें ही एक पॉइंट है, इफ कंपनसेशन इज पेड टू वर्कर्स ऑन क्लोजर ऑफ द एंटायर बिजनेस द सेम वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर अगर सारा बिजनेस क्लोज करके है, उस टाइम जो कंपनसेशन जो गया एम्प्लॉइज को, वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, और इस केस में ये रेवेन्यू है, अलाउड है। एंड अगर एक केस लो CIT वर्सेस प्रिया विलेज रोड शोज लिमिटेड 2011 में, जिसमें कहा कि एक्सपेंडिचर किया है कंपनी ने ऑन फिजिबिलिटी स्टडी रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, बट द प्रोजेक्ट वाज अबंडन विदाउट ट्रैकिंग इन न्यू एसेट। और बाद में ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो हमने इसको अबंडन कर दिया है, तो अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, और ये क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है आपकी। तो एक हेल्प किया कि सिंस द फिजिबिलिटी स्टडीज were conducted by the SSC for existing business and the studies were abandoned without taking a new asset, the expense is of revenue nature, तो इसमें किसी अलाउड है जो एक्सपेंस है। एनके केस ना सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सी ACI की 2012, तो GST लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो कैन अमाउंट को कलेक्टेड बाय एन एंटिटी फ्रॉम इट्स कस्टमर से टुवर्ड्स पॉसिबल GST लाइबिलिटी बी ट्रीटेड एज इट्स इनकम। कंपनी ने GST के लिए कस्टमर से GST कलेक्ट कर लिया है, और क्या आपकी इनकम मानी जाएगी कंपनी की ये? इफ सच सम इज नॉट केप्ट इन अ सेपरेट इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन सेल्स टर्नओवर, और सेल टर्नओवर में इंक्लूड है और इसको हमने अलग से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है, तो it is held that GST collected from customer form the part of the assessee turnover which will be prepared income of assessee। फिर इसका एक पॉइंट हो गया, जब आप GST की पेमेंट करोगे सेक्शन 43B के अंदर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, फिर वो एक्सपेंस माना जाएगा। जब तो पेमेंट नहीं करोगे, टर्नओवर में इंक्लूड है, तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी। CIT वर्सेस ग्रोथ बेकर्स एशिया लिमिटेड 2013, कॉर्पोरेट मेंबरशिप फीस पे की है कंपनी ने टू द गोल्फ क्लब फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, तो ये रेवेन्यू है या कैपिटल है आपका। तो बाय एक्वायरिंग मेंबरशिप privilege to use facilities of a club alone are conferred on the assessee for a limited period for running a business with a view to provide benefits to the assessee, hence it is allowed as a revenue expense। तो ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए बेनिफिट मिलेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है आपका। तो CIT वर्सेज रिगेलिया एपरल्स प्राइवेट लिमिटेड 2013 है। Encashment of bank guarantee by the Export Promotion Council on account of failure of SSC to honor export commitment। जैसे एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट फुलफिल नहीं किया, उसकी गारंटी थी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, वो एनकैश हो गई है, तो क्या वो इट कैन बी कंसीडर्ड एज कंपनसेटेड इन नेचर टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1)। तो क्या ये कंपनी के लिए एक्सपेंस माना जाएगा? तो इट इज द फेलियर टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट गुड रेंजर द बैंक गारंटी लायबल टू फॉरफीचर, the forfeiture of bank guarantee by compensatory in nature, hence it is allowed as expense। yes it is allowed है क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए है, बिजनेस है आपका एक्सपोर्ट का। तो एनएचआर की शक्ति ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस CIT 2001, उसमें ये डिसाइड होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे लेंगे इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक बार हेल्ड गया कि इफ फर्म इज डिसॉल्व्ड ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड द सर्वाइविंग पार्टनर्स रिकॉन्स्टिट्यूट द फर्म and continue the business as before, the firm is entitled to adopt the cost to market price whichever is low। आपने स्टॉक को वैल्यू करना है कॉस्ट टू मार्केट प्राइस whichever is low, क्योंकि बिजनेस आपका जो है कंटिन्यू हो गया है आफ्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर। एनके केस को आएगी CIT वर्सेज
So Nigeria News and Networking Private Limited 2012. So expenses incurred by SSC on the education and travelling of an employee being the son of ex-director of SSC company, और ये एम्प्लॉई है और वो सन है एक्स डायरेक्टर का। पर्पज है फॉर एक्वायरिंग नॉलेज रिलेटिंग टू एसएससी बिजनेस, क्या ये अलाउड है या डिस अलाउड है। तो एक है डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड बाय एसएससी ऑन द फॉरेन ट्रैवल एंड एजुकेशन ऑफ a regular employee outside India for gaining advanced knowledge डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी के अलाउेबल है जो एक्सपेंस, तो बिजनेस पर्पज के लिए है तो बेनिफिट होगा तो एक्सपेंस माना जाएगा, अलाउड है। CIP वर्सेस त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2012, कैन एडवांस गिवन टू एम्प्लॉइज विच बिकेम इररिकवरेबल बी अलाउड एट बिजनेस लॉस। अपने एम्प्लॉइज को एडवांस दिया है, बाद में वो रिकवर नहीं हुआ है। एडवांस गिवन टू एम्प्लॉइज विच हैव बिकम इररिकवरेबल विल बी ट्रिकी एट बिजनेस लॉस, यस ये बिजनेस लॉस माना जाएगा। CIT वर्सेस ओरिएंट सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2013, इसमें कहा कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ग्लो साइन बोर्ड्स है अलाउड एट एक्सपेंस और नो। जैसे शॉप्स के बाहर लगे होते हैं ना ग्लो साइन बोर्ड होते हैं, उस पर जो एक्सपेंडिचर है तो वो रेवेन्यू है या नहीं। द ग्लो साइन बोर्ड इज नॉट एन एसेट ऑफ परमानेंट नेचर, इट हैज ए शॉर्ट लाइफ विच रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट, हेंस इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, वो अलाउड एक्सपेंस माना जाएगा। Another case was CIP versus Hotel ITC Hotels Limited 2011. Expenditure on issue and collection of debenture और convertible debenture। डिबेंचर होता है हम लोन ले रहे हैं उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है इसी रेवेन्यू एक्सपेंस है, अलाउड है, बिजनेस है। Another case was CIP versus IBM Global Services India Private Limited 2014. Payment for use of database and trained personnel, तो आपने कोई database यूज करना है किसी का, उसके बदले में हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं। तो केस है आपका एसएससी कंपनी पेड अमाउंट फॉर यूज ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर डेटाबेस एंड सर्टेन स्किल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टू द जॉइंट वेंचर कंपनी विच एनेबल द एसएससी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस सपोर्ट सर्विसेज एंड इफेक्टिवली रन इट्स सॉफ्टवेयर बिजनेस। तो राइट वैगर की एक्सपेंस और नोट, तो इट इज हेल्ड दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज फॉर यूज ऑफ डेटाबेस एंड नॉट फॉर एक्विजिशन ऑफ सच ए डेटाबेस, हेंस इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Similarly, the expenditure incurred for obtaining trained and skilled employees is revenue expense। तो सिर्फ यूज करने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो ये एक्सपेंस माना जाएगा रेवेन्यू। एनिकल केस लॉ है जो CIP वर्सेज हेमचंद मोतीलाल जैन टोबैको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो अलाउबिलिटी ऑफ रैंसम मनी पेड टू किडनैपर इन द बिजनेस इंटरेस्ट इज अलाउएबल एक्सपेंस। उसमें रूल क्या है, तो जैसे कोई किसी पर्सन को किडनैप कर लिया है उसके बेस पर आपने कुछ मनी पे की है और वो बेनिफिट है बिजनेस के लिए तो वो अलाउड एक्सपेंस माना जाएगा। तो बट जनरल रूल तो ये है, जनरल रूल इज दैट टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन इफ अ रैंसम इज पेड इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस और एक्शन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वैसे तो ये इलीगल है कि आप अमाउंट पे नहीं कर सकते रैंसम मनी, but when ransom money is paid for the rescuing the executive director of the company, it is payment in connection with the business because without the executive director, the functioning of the company will be effective. Hence, ransom money paid shall be allowed as expense। Business purpose के लिए है तो ये allowed हो गई है आपको। यानी कि रहिए CIP वर्सेस GIC 2006। GIC है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, लीगल एक्सपेंसेज for issue of bonus shares is revenue expense and is allowable as deduction। देखिए आप नए शेयर इशू करते हैं ना मार्केट में तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, 35D में डिडक्शन मिलती है 5 इंस्टॉलमेंट में, पर बोनस शेयर को हम जो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि इससे हमारे कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिजर्व को ही कैपिटलाइज करते हैं। यानी केस है हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 2005। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्पाउस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे MD ने ट्रैवल करना है साथ में उसका स्पाउस भी ट्रैवल कर रहा है उसके साथ, उसके भी एक्सपेंसिव कंपनी पे कर रही है तो वो अलाउड है या नहीं। एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग ऑफ वाइफ ऑफ MD टू फॉरेन टूर इज एन अलाउबल एक्सपेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कमर्शियल एक्सपेरियंस एंड बिजनेस कंसिडरेशन है वेयर फॉर अलाउड है कि रेवेन्यू एक्सपेंस। तो उससे MD को मॉरल सपोर्ट मिलेगी और बिजनेस में बेनिफिट होगा तो इट इज अलाउड। फिर आते हैं सेक्शन 37(1) में जिस अलाउड एक्सपेंसिव होते हैं इलीगल पेमेंट्स से। नंबर 1 इज कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री SSI वर्सेस CBDT 2013। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्री बीज
provided by pharmaceutical companies to medical practitioners allowed in the section 37(1) or no. तो हम इंसेंटिव देते हैं ना मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो एवरी मेडिकल प्रैक्टिशनर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट, ट्रैवल फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, कैश और मॉनिटरी ग्रांट फ्रॉम एनी फार्मास्यूटिकल एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज, हेंस द एक्सटेंशन फ्री बीज शैल बी डिसअलाउड। तो ये प्रोहिबिटेड है, तो ये डिसअलाउड है, इलीगल माना जाएगा। तो CIP वर्सेस कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। So can the commission paid to doctors by a diagnostic center for referring patients for diagnosis be allowed at business expense? तो एक टेस्टिंग सेंटर है कोई, वो डॉक्टर्स को कमीशन पे कर रहा है, सो क्या के देखने रेफर पेशेंट टू देम to whether it allowed, so it has been held that any offer to give solicit to receive any gift, gratuity, commission or bonus in consideration of a return for referring any patient for medical treatment is not a fair practice and is opposed to public policy and should be discouraged. Hence, तो ये illegal है, hence commission paid to doctor for referring patients for diagnosis is not allowable as a business expense. CIT versus Neelavati and others 2010. Can payment to police personnel and gundas to keep away from the cinema theaters run by the SSC be allowed है डिडक्शन? तो हमने पुलिस वो या गुंडास को हमने पेमेंट कर रहे हैं कि ताकि जो कुछ पर्सन है गुंडास को आपने दूर रखना है सिनेमा थिएटर से, तो क्या वो अलाउड है? तो इट हैज दैट एनी पेमेंट मेड टू द पुलिस एंड गुंडास इलीगली अमाउंट टू ब्राइब एंड नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, ये भी इलीगल है। So Millennia Developers Private Limited versus CIT 2010. So each is the amount paid by a construction company, developer and builder as regularization fee for violating building bylaws allowed as deduction. जैसे बिल्डिंग बनाई बिल्डर ने, उसमें कुछ वायलेशन होगी, उसको ठीक कराने के लिए हमने एक रेगुलराइजेशन फीस पे कर दी है, तो क्या अलाउड है? तो इट इज हेल्ड गया कि द अमाउंट पेड टू कंपाउंड मींस सेटल एन ऑफेंस इज ऑब्वियसली ए पेनल्टी। ये एक ऑफेंस है तो हम पेनल्टी दे रहे हैं, हेंस द पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, तो ये अलाउड नहीं है। अनदर इज सेक्शन 40, उसमें केस लॉ है CIP वैसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2018 सेक्शन 40A(I), इसमें होता है कैन पेमेंट्स मेड विदाउट TDS बाय एन एसएससी टू ए नॉन रेजिडेंट एजेंट हु डज नॉट हैव एनी इनकम असेसेबल इन इंडिया बी डिसअलाउड। तो आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है पर उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, उस पर इसका मतलब है 40A(I) में हमने TDS चार्ज नहीं किया, तो क्या वो अलाउड है? आपकी हमारा रूल ये है, it has been held that where the assessee has made payment without TDS to a non-resident agent which is not taxable in India, पर वो taxable ही नहीं है इंडिया में, then the deduction for expense shall be allowed। तो allowed है expense, तो क्योंकि TDS को अप्लाई होगा ही नहीं उस केस में, तो TDS हम चार्ज भी नहीं करेंगे। एनकर केस ना पालम गैस सर्विस वर्सेस CIT 2017, तो ये भी ऐसे ही है, वैके सेक्शन 40A(I)(A) it is attractive when amount is not payable to subcontractor but has actually been paid। तो 40A(I)(A) में होता है TDS चार्ज करना है, यदि आप किसी इंडिया में भी किसी को पेमेंट करते हैं, पर ये कह रहे हैं कि क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा कि व्हेन अमाउंट इज नॉट पेबल, अमाउंट पे नहीं करना था पर आपने पे कर दिया एडवांस में, इसका मतलब है क्या उस पर भी TDS लगेगा? और would the obligation to deduct the tax depend on method of accounting followed by an assessee is on due basis, accrual basis और payment basis? इतनी जो 40A(I)(A) में TDS लगता है वो पेमेंट बेसिस पे लगेगा या ड्यू बेसिस पे? तो उसका देखते हैं क्लैरिफिकेशन। एक्ट सेक्शन 40A(I)(A) द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इज मैंडेटरी और अमाउंट पेड और पेएबल, इसमें लिखा है दोनों, अमाउंट क्या आपने पे कर दिया या पेएबल है, और ये मैंडेटरी है TDS चार्ज करना एंड एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड। तो इसका मतलब है जो अमाउंट आपने पे कर दिया है यदि ड्यू नहीं भी था तो TDS चार्ज हो जाएगा। So hence tax is to be deducted as source under section 40A(I)(A) when the amount is payable or when the amount is paid depending on the system of accounting followed by assessment। Another case was CIT versus Great City Manufacturing Company 2013। तो सेक्शन 40B ये होता है जो रेम्युनरेशन पे करते हैं, कैन रेम्युनरेशन पे टू वर्किंग पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड बी कंसीडर्ड एज अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव
or attracting disallowed under section 40A2 even though the same is within the statutory limit prescribed under section 40B। 40A2 में आता है जब आप रिलेटिव को अनरीजनेबल पेमेंट करते हो, क्योंकि पार्टनर भी रिलेटिव है फर्म का, तो उसको यदि आप ज़्यादा दे रहे हो बट 40B में अलाउड है, तो क्या वो अनरीजनेबल मानी जाएगी? तो हमारा रूल ये है, it has been held that the deduction for remuneration to partner is allowed up to limit specified, वो allowed है up to जो limit specify की गई है सेक्शन 40B में, एंड सेक्शन 40A2 कैन नॉट बी इन्वॉल्व। तो इस केस में 40B अप्लाई होगा, 40A2 नहीं होगा। पार्टनर को एज ए रिलेटिव मान के हम जिस अलाउ नहीं कर सकते रेमुनेशन, लेकिन 40B में अलाउड है तो वो अलाउड है आपका। सेक्शन 41 है वेवर ऑफ लोन। लोन होता है आपने एक बिजनेस के लिए लिया है, एसेट परचेज करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, अब वो वेव कर गया है तो वो आपकी इनकम है या कैपिटल आइटम है, उसके केस लॉ है। तो CIT वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 2018 सेक्शन 41(1) वेवर ऑफ लोन टू मीट कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 और 41(1). So it means the amount of loan waived would not be taxable either under section 28 or 41(1) but shall be deducted from the cost of asset for computing depreciation। जब आपने लोन लिया था ना कैपिटल एसेट के लिए, फिर वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस करके जब वेव होगा और उसकी डेप्रिसिएशन भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, दिस इज नॉट इनकम। CIT वर्सेस सॉफ्टवर्क्स कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2013 में। So in this case, can waiver of loan or advance taken for the purpose of relocation of office premises, which is exacted for acquisition of a capital asset, namely a new office, be treated as a revenue receipt liable to tax। तो ये भी आपने वेवर हो गया लोन का, आपने ऑफिस प्रेमिसी को रीलोकेट करना है, वो कैपिटल एसेट है, ये इनकम नहीं है आपकी। एक ये हेल्ड गया कि वेवर ऑफ लोन कैन नॉट बी said to be waiver or remission of crediting liability, hence waiver of such advance for relocation of office premises being capital in nature is not taxable। बल्कि जो आपकी कॉस्ट आएगी ना और नई ऑफिस की उसकी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो इस क्रैमो रीजेंट लिमिटेड वर्सेस CIT 2011 waiver of principal amount of loan taken for purchase of capital asset by bank। ऐसे बैंक ने कोई ऐसे खरीदी है, उसके लिए लोन लिया था, अब वो वेव हो गया है, तो इट इज हेल्प ब्रैकेट्स इनका लोन वाज टेकन फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इक्वल कैपिटल रिसीट व्हिच शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। तो मेन डिसीजन यही है, जब आप एसेट परचेज करने के लिए लोन लेते हो, बाद में वो लोन वेव हो जाता है, उसको एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो और नेट अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो रोला केनर्स लिमिटेड वर्सेस CIT 2011 can section 41(1) be invoked both in respect of waiver of working capital loan utilized for day-to-day business operation and in respect of waiver of loan taken for purchasing a capital asset। तो 41(1) में तो ट्रेडिंग लायबिलिटी कवर होती है हमारी, तो एक वर्किंग कैपिटल का लोन है, एक एसेट का है। द वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन हैज टू बी ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ सेक्शन 41(1) और जो कैपिटल एसेट का है वो हम कर ही चुके हैं। टर्म लोन टेकन फॉर परचेजिंग कैपिटल एसेट, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा एसेट की कॉस्ट में से। फिर आते हैं सेक्शन 43B। देखो 43B कहते हैं कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें अलाउड हो जाते हैं, जो एक्सपेंस करंट प्रीवियस ईयर में पेमेंट बेसिस पर, देखिए आपने उसकी पेमेंट कर दी है अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ड्यू डेट होती है रिटर्न की, जैसे 31 जुलाई होती है या 30 सितंबर कंपनी है केस में। तो देखते हैं कौन से केस लॉ है। CIT वर्सेस अलोम एक्सक्लूजन्स लिमिटेड 2009। ये है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन करना था एम्प्लॉइज के वेलफेयर फंड में। इसमें रूल है एक्ट सेक्शन 43B का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड PF ग्रेचुएट सेक्टर एम्प्लॉइज शुड बी पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) टू क्लेम ए डिडक्शन, हेंस इट इज अलाउड एट एक्सपेंस। तो इट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट है टोटल 31 मार्च है, पर आपने रिटर्न फाइल करने को पे कर दिया है तो ये अलाउड हो जाएगा एज एक्सपेंस। एंड ये केस है CIT वर्सेस गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2014। अब आता है एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। उसमें क्या होता है, ये हम क्रेडिट करके एम्प्लॉय के अकाउंट में बाय एम्प्लॉयर असेसे आफ्टर या ड्यू डेट बट अंडर द रेलेवेंट एक्ट बट रिमिटेड अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम।
एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, पहले वो एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है उसकी सैलरी में से, वो उसकी इनकम बन जाती है। जब वो पे करता है, वो पे करना होता है उसने ड्यू डेट जो होती है उसकी रेलिवेंट एक्ट में, उस डेट को पे करना है, फिर वो अलाउड एक्सपेंस माना जाएगा। पर इसमें हमने पे किया है बाद में, बट अप टू ड्यू डेट को रिटर्न, तो क्या इसमें अप्लाई होगा 43B, वो पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI इज एन इनकम ऑफ एम्प्लॉयर असेसी अपॉन रिकवरी फ्रॉम सैलरी एंड इट्स रिमिटेंस पेमेंट मेड विदिन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 36(1)(5)(a) मेक्स इट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये सेक्शन कहता है इसकी ड्यू डेट है उस एक्ट के अंदर, and it is not deductible even though such payment has been made up to due date of filing return of income under section 139(1). तो इस ड्यू डेट तक पेमेंट होनी चाहिए जो 36(1)(5)(a) में मेंशन की गई है। जो रिटर्न की ड्यू डेट है उसका रेलिवेंस नहीं है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आपने ध्यान रखना है, ऊपर वाला का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये 43B में कवर होता है। देखो 43B में वो ड्यू डेट को फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम जो आप पे कर सकते हैं अलाउड हो जाएगा। पर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसकी ड्यू डेट होती है अंडर रेलिवेंट एक्ट में, नॉर्मली ये 31 मार्च होती है, उस डेट पर पेमेंट कर दोगे तो अलाउड है, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाएगा। 43B इसको अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट बनेगी CIT वर्सेस KLN एग्रोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2015। तो वन टाइम सेटलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू। अब कई बार हो गया आपका लोन ड्यू हो गया है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी ड्यू है, फिर इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब हम कहते हैं कि हमें कुछ वेवर दे दो, जैसे 5 लाख ड्यू है, उसमें प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी, हमने 4 लाख पे सेटलमेंट कर दिया, 4 लाख पे कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी। तो उसमें केस ये है, where the lump sum amount paid as a one-time settlement without bifurcation of interest and principal has been offered to tax under section 41(1). तो जो भी आपको वेबर मिला वो हमने अपनी इनकम दिखा दी 41(1) में। तो क्या है ना, assessee claim benefit to deduction of interest paid plus interest waived under section 43B। तो जो इंटरेस्ट वेव हो गया वो तो हमने इनकम में डाल दिया है, तो अब क्या हम पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं जो इंटरेस्ट आपने पे किया है प्लस जो इंटरेस्ट आपका वेव हो गया है? तो इसका रूल है ये। तो एक हैज बीन हेल्ड दैट वेयर द एंटायर अमाउंट वेव्ड हैज बीन ऑफर्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 41(1), द इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 43D। जब आपने वेवर की एग्जम्पशन ले ली है, ठीक है, इनकम शो कर दिया है, तो आपने जो इंटरेस्ट पे कर दिया है उसकी जो डिडक्शन ले लो 43B में। अगर नेट इफेक्ट का क्या होगा, नेट इफेक्ट की जाए कि द प्रिंसिपल अमाउंट वेव्ड विल बी टैक्सेबल एज इनकम, हेंस नेट इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज एक्सपेंस अंडर सेक्शन 43D। तो नेट इंटरेस्ट जो पे किया वो एक्सपेंस बन जाएगा, प्रिंसिपल जो वेव हुआ था वो आपकी इनकम बन जाएगा। Another case was CIT वर्सेस मिंडा वायर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड 2013। कन्वर्जन ऑफ अनपेड GST इनटू लोन। आपका GST ड्यू था वो आपने लोन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी पेमेंट की डेट क्या मानी जाएगी? तो एक हेल्ड जाए तो कन्वर्जन ऑफ GST इनटू लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक तरीके है कि पेमेंट ऑफ टैक्स इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। तो जिस ईयर में कन्वर्जन होगी ना उस साल में समझो आपने पेमेंट कर दी है, तो 43B के अंदर उस साल आपका अलाउड एक्सपेंस बन जाएगा। यानी करेगी CIT वर्सेस आंध्रा फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड 2012। तो क्या है ना, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज क्रिकेट फीस टू अट्रैक्ट डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43B। तो अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है तो क्या ये भी हमारी स्टेट्यूटरी पेमेंट है 43B में? एक है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आर नॉट कवर्ड एज फीस बाय सेक्शन 43B, therefore non payment to electricity charges are not disallowed under section 43B but are allowed at expense under section 37 on due basis। ये ड्यू बेसिस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो PGB के आते हैं कुछ अभी जनरल केस लॉज हैं। BIT वर्सेस GST नियोल गांव 2014। एक्चुअल प्रॉफिट हायर गैन डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44BBB। उसमें है कि कैन असेसिंग ऑफिसर ब्रिंग टू टैक्स एक्चुअल प्रॉफिट इफ द सेम इज हायर गैन डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44B में होता है 10% ऑफ रिसीट हमारा डीम्ड प्रॉफिट माना जाता है इन केस ऑफ ए फॉरेन कंपनी एंगेज इन टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो क्या असेसिंग ऑफिसर उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपका मान सकता है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा भी आ रहा है? It is held that if an assessee fulfills all the conditions under section 44BBB, a sum equal to 10% of the amount paid or payable to such a foreign company would be deemed as its business income।
असेसी के पास एक राइट होता है, असेसी है द बेनिफिट ऑफ डिक्लेयरिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर दैट द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय इट वर लेस देन 10% इफ टैक्स ऑडिट हैज बीन डन। देखिए आपने टैक्स ऑडिट करवा लिया है तो आप उससे लेस शो कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा शो करना है, वो आपकी मर्जी होती है। इट मीन द रेवेन्यू अथॉरिटी कैन नॉट क्लेम दैट प्रॉफिट अर्न बाय द असेसी वर मोर देन 10%। असेसिंग ऑफिसर आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आपका प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है। 84th नंबर है CIT वर्सेस M वेंकटेश्वर राव 2015। Can capital contribution of the individual partners credited to their accounts in the books of the firm be taxed as a cash credit in the hands of the firm where the partners have failed to explain satisfactorily the source of receipt of their individual hands? पार्टनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इन्होंने जो कैपिटल दिया है फर्म को वो पैसा कहाँ से आया है, तो उसको कैश क्रेडिट मानते हैं। तो क्या अब ये इनकम फर्म की मानी जाएगी या पार्टनर की गिवन इनकम? तो देखो सेक्शन क्या है, सेक्शन 60 है कि डायरेक्ट से क्या है कि इफ एन असेसी फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर एंड सोर्स ऑफ क्रेडिट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इट इज ट्रीटेड एज गिवन इनकम। And it has been held that where the firm explains that partners have contributed capital, the capital of partner is not deemed income of firm। तो फर्म ने को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैपिटल है पार्टनर का, तो फर्म की जो इनकम नहीं मानी जाएगी, नॉट डीम्ड इनकम ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 68। But however, the assessing officer can make an inquiry against individual partners and not the firm when the partners have also admitted their capital contribution in the firm। असेसिंग ऑफिसर गिवन इनकम मान सकता है पार्टनर की यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसका सोर्स। नंबर 85 PCIT वर्सेस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड 2018। इसमें है कि वुड सेल ऑफ फर्टिलाइजर बॉन्ड से इशूड इन लिeu ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में फर्टिलाइजर बॉन्ड इशू कर दिए, अब वो आपने सेल कर दिया एट लॉस के ऊपर। तो वैगर ये जो लॉस है वो जो लॉस भी ट्रीटी एज बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस अंदर क्या है कि कैपिटल गेन। तो it is held that since the subsidy would have been treated as business income, loss on sale of fertilizer bond issued is to be allowed as a business loss। सब्सिडी बिजनेस इनकम है तो उसका जो लॉस है वो बिजनेस लॉस माना जाएगा, अलाउड है। चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो कैन या नोटिफाइड ICDS, ये है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, बी स्टेटेड एज अल्ट्रा वायर्स to the extent they are in contravention with the provisions of income tax act और judicial precedents। ICDS जो है वो अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायर है, तो क्या हम इसको इग्नोर कर देंगे? अल्ट्रा वायर हो सकते हैं आपके जो ICDS अल्ट्रा वायर्स हैं। तो सेक्शन 145 प्रोवाइड्स है कि ICDS इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरराइड बाइंडिंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो ICDS है ना ये कैन नॉट ओवरराइड नहीं कर सकते हमारी जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं। तो इट हैज बीन हेल्ड दैट in case of a conflict between ICDS and provisions of income tax act and just tackle the judicial precedents, the ICDS will be ultra vires माने जाएंगे and therefore the latter will prevail। तो फिर इनकम टैक्स के रूल्स जो हैं वो प्रिवेल करेंगे, ICDS में प्रिवेल करेंगे। अब कुछ केस में होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो ये अलाउड एक्सपेंस नहीं होता है बल्कि कैपिटलाइज हो जाता है। होंडा CL कार्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस CIT 2017। So technical fee paid for setting up a joint venture company in India is to be treated as revenue or capex, where upon termination of the agreement the joint venture would come to an end। कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, उसके लिए कुछ टेक्निकल फीस पे की है, पर एग्रीमेंट हमारा जब एंड हो जाएगा अपॉन, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा या कैपिटल जब आपका ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट आपका एंड हो जाएगा। सो हेयर है केस है if a limited right to use technical know-how is obtained for a limited period to improve existing business, the expenditure is revenue in nature। If technical know-how is obtained for setting up a new business, then it will be a capital expenditure। लेकिन आप पुराने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं वो तो रेवेन्यू है, यदि आपका नया बिजनेस है फिर वो कैपिटल है। तो it has been held that when the technical fees paid for setting up a joint venture a new business है ये, and the assessee gets intellectual property rights to exploit manufacturing facilities, know-how, technical information as a licensee
देन इट वुड बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये नया बिजनेस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो मैस्कॉन टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2013 में पब्लिक इशू एक्सपेंसिव ऑन इशू ऑफ शेयर के ऊपर एक्सपेंसिव हो रहे हैं। द शेयर इशू एक्सपेंडिचर इज इनकम प्राइमरी एक्सरसाइज फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी which is called as a preliminary expense under section 35B and it would be continue to be of capital nature even if public issue could not ultimately materialize on account of non clearance by SEBI। पब्लिक इशू आपका अगर सेबी ने क्लियर नहीं भी किया ना तो भी जो एक्सपेंडिचर है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस माना जाएगा। तो क्वेश्चन यही था, कैन शेयर इशू एक्सपेंसेज आर कैपिटल इन नेचर इफ द पब्लिक इशू कुड नॉट अल्टीमेटली मटेरियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस बाय सेबी। तो यस, देखिए जो पब्लिक इशू एक्सपेंस है आपका प्रीलिमिनरी है, कैपिटल नेचर का है, हेंस शेयर इशू एक्सपेंस इज डिडक्टिबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट अंडर सेक्शन 35 और 5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंस यूज है। भारत गियर्स लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2011 what would be the nature of a repair and reconditioning expenditure incurred on a machine which broke down years ago। एक मशीन आपकी खराब हो गई बहुत साल पहले, अब उसको आपने रिपेयर करके ठीक कर दिया है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल। तो इट इज हेल्प दैट व्हेन ह्यूज एक्सपेंडिचर इज incurred on machinery to make it functional it brings into existence a new machinery with the benefit of enduring nature to the assessee। तो एक तरीके से ये नई मशीनरी हमारी एग्जिस्टेंस में आ रही है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो इट मीन्स देयरफॉर इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन विच डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। सीआईटी वर्सेस मोबिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2011 में तो what is the nature of expenditure including demolition and re-erection of a cell room and expenditure on purchase of pumping set, monoblock pump and 2 transformers which were parts of a bigger plant, revenue or capital। When a part of building is demolished and a new structure is erected on that place, ये तो है आपका capital expenditure है। But however, the purchase of a pumping set, monoblock pump which transformers are part of a bigger plant which would be required repair expense, ये है आपका revenue expense allowed है। सीआईटी वर्सेस श्री जिसमें कि मंग्यार कृषि मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 2009 रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द मशीनरी। तो आपके एक मशीनरी को आप रिप्लेस कर रही हैं इन ए टेक्सटाइल मिल वेयर आर डिफरेंट मशीन्स हैं इंटेग्रली कनेक्टेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट यार्न। वन ऑफ द मशीन इज रिप्लेस्ड इट इज टू बी करंट रिपेयर और नॉन। तो ये आपका रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें यह है कि ईच मशीन जो है इन ए टेक्सटाइल मिल इज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट आइटम है दो इट इज इंटेग्रली कनेक्टेड टू अदर मशीन्स। So in the mill for production of the final product, so it is held that the replacement of old machine by new machine is a capital expenditure and is to be added to actual cost। CIT versus Triveni Engineering and Industries Limited 2012 non recovery of security deposit। So can security deposit paid to landlord which becomes irrecoverable be allowed as business loss। आपने में से लिए रैंक पे डिपॉजिट किया लैंडलॉर्ड को, बाद में वो उसने वापस नहीं किया आपको इरिकवरेबल हो गया, तो क्या ये बिजनेस लॉस माना जाएगा। या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स विच वर गिवन टू ऑब्टेन ए राइट टू यूज द प्रीमिसेस ऑन रेंट, ये है आपकी है टेनेंसी राइट जिसको कैपिटल एसेट कहते हैं, वर रिफंडेबल की एंड देयरफॉर वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सो इट इज नॉट अलाउड एज बिजनेस लॉस। तो ये कैपिटल लॉस है आपका, नॉट बिजनेस लॉस। एंड वन है कि मैकग्रा रविंद्रा लेबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी एक्सपेंडिचर ऑन फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। पीछे आया था फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस था, ये नया प्रोजेक्ट है। तो इट इज हेल्प डायरेक्टर वेयर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड द प्रोजेक्ट वाज अबंडन्ड विदाउट रेकिंग ए न्यू एसेट, तो द एक्सपेंसेस आर ऑफ कैपिटल नेचर एंड नॉट अलाउड एज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। स्वदेशी कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1965, इसमें कहा कंपनसेशन पे किया है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल एसेट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एसेट परचेज करनी थी या सेल करनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, उसके बदले में कंपनसेशन है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस सीआईटी 1997
एक्सटेंसिंग ऑन alteration of memorandum to increase authorized share capital, ये कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल स्ट्रगल कर रहे हैं. लीगल एक्सटेंसिंग इन रिलेशन टू alteration of memorandum to increase the authorized capital related to extension of capital base of the कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस पर आपको कैपिटलाइज करना है, दिस इज नॉट अलाउड इन बिजनेस एक्सपेंस.